everyone, and welcome to the ABCD podcast, the School of Psychology and the Personal Development. I'm your host, Jigyasa Sharma, and I'm delighted to have you all with us in today's episode. Today, we will talk about the early childhood education, a stage that often called the foundation of life. These first few years are when children learn to explore, interact, and develop habits that shapes their future. Play school plays a vital role in this journey by not just teaching but nurturing creativity, curiosity, and the lots of confidence. To help us understand more about this, we have a very special guest, that is a Sonali Sharma ma'am, the owner of a play school and a daycare. With a year of experiencing in guiding little learners and the supporting parents, Sonali Sharma has seen how these early years make all the differences. Welcome to the podcast, ma'am. Thank you for having It's me. wonderful to have you here, ma'am. All the parents, teachers, and listeners out there, get ready for engaging discussion filled with practical tips, real life experiences, and inspiring thoughts on early childhood learning. So let's begin our journey. So, ma'am, could you briefly introduce yourself and tell us about your play school journey? As you have already mentioned that I'm running a preschool, and obviously I've been experienced with this profession. And as you said, my name is Nali Sharma, and I have experience somewhere what about 11 to 12 years. And after working with so many corporate companies and the MNCs, I wanted to follow my passion eventually because I always been to be with kids, surrounded by kids, and I wanted to create a space where I can feel and give them a proper love, care, and nurturing environment. So then I decided to have a preschool, and yeah, I'm running it well so far as. What inspired you to start a play school, and how's the journey been so far? इंस्पिरेशन हैव ऑलवेज बीन द किड्स, उनको कैसे मुझे एक हैप्पी स्पेस क्रिएट करके देना है. एज एवरीबडी नोज, इनिशियल 5 years जो हैं एक बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. उनके 90% मेंटल डेवलपमेंट, जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो 1 to 5 year में ही डेवलप हो जाता है. तो उनके अंदर जो भी इमोशनल और जो भी हैबिट्स क्रिएट होती हैं, जो भी कॉन्फिडेंस आता है, वो लाइफ लॉन्ग रन करता है. तो बेसिकली हम इसको बेसिक कोर फाउंडेशन कहते हैं. अगर वो हम बहुत स्ट्रांगली एक बच्चे को दे पाएं, तो वो फ्यूचर में फिर किसी से भी फाइट कर सकता है. तो आई प्रेफर कि जो भी हम प्री स्कूल फाउंडेशन देते हैं, वो हमें इस तरीके से देनी चाहिए ताकि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाए. सो अभी आपने मेंटल हेल्थ की बात करी कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बिल्ड हो जाता है फर्स्ट 5 years में. So, according to you, how important it is that early childhood is for building a strong mental health foundation of for the children? आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए. मेंटल अवेयरनेस, इमोशनल माइंडफुलनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सी, अगर कोई भी बच्चा सबसे पहले स्टेप आउट करता है, तो उसका फर्स्ट इंटरेक्शन जो होता है वो एक प्री स्कूल या प्ले स्कूल से होता है, जो उसका एक फर्स्ट सोशल गैदरिंग होता है, जहाँ पे अगर उसको इमोशनली अ पार्ट ऑफ पेरेंट एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए, जहाँ पे वो लव फील करे, वार्म फील करे, सिक्योर एंड सेफ फील करे, तो फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाता है. तो आई फील कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चाइल्ड के लिए. So, what common emotional and the behavioral challenges you noticed in the preschool children? अभी भी कोई बच्चा एंटर करता है स्कूल में, तो फर्स्ट जो पेरेंट और बच्चा दोनों सफर करते हैं, वो होता है सेपरेशन एंजाइटी. Correct. एक बच्चे का उसके पेरेंट से अलग होना. और सिमिलरली पेरेंट भी सफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बाहर बच्चे को भेजा नहीं होता है. और सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी प्री स्कूल में भेजते हैं, तो उनके पास उतना ट्रस्ट नहीं होता है कि वो कैसे ट्रस्ट करें. तो हम अभी फिलहाल के लिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने यही कोशिश करी है कि पेरेंट को एक होमली स्पेस दें. हमारे पास लाइव सीसीटीवी है, जहाँ पे अगर पेरेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो उनको कुछ भी करते हुए लाइव देख सकते हैं. और फर्स्टली जब बच्चा आता है, तो हम टीचर
और बच्चा और पेरेंट के साथ एक कनेक्ट क्रिएट करते हैं, ताकि पेरेंट उस टीचर पे विश्वास कर सके, ट्रस्ट कर सके, और उसको लगे कि हाँ, हमारा बच्चा बहुत सेफ इन्वायरमेंट में है। और उसी तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हुआ हुआ है कि जहाँ पे हम मील सर्व करते हैं तो बिल्कुल होम कुक फूड सर्व करते हैं, और एक साथ बैठ के बच्चों को खिलाना, उनके साथ आपस में शेयर कराना, ये सारी चीजें हम इस तरीके से एनवायरनमेंट में सर्व करने की कोशिश करते हैं। और राइट। दूसरा जो होता है, जब भी बच्चा आता है, सेपरेशन एंजाइटी की वजह से टेंट्रम्स और एंगर इश्यूज भी होते हैं। कोई भी बच्चा अगर आता है तो सबसे पहले ही और शी प्रेफर्स टू सिट इन अ कॉर्नर, एंड ही वुड नॉट शेयर एनीथिंग विद एनीवन, एंड एंगर इश्यूज रहेंगे, टेंट्रम्स, हिटिंग, पुशिंग, एवरीथिंग कैन हैपन। सो हाउ वी डील इट, लाइक वी लेट देम काम डाउन, जितना शांत होके, जितना टाइम लेके पेशेंसफुली हम उनको हैंडल करते हैं, और धीरे 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 फिर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। राइट, यू मीन टू से कि जो बच्चे सेपरेशन एंजाइटी के या फिर जो टैंट्रम्स है हमने जो अभी डिस्कस किया, तो आपका स्टाफ बच्चे को स्पेस दे के उस चीज को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है कि लेट द चाइल्ड टेक्स हिज स्पेस, एंड जब भी या वो कंफर्टेबल फील करे तो वो आके खुद एक्सप्रेस करे या खुद इन्वॉल्व होए दूसरे बच्चों के साथ। बिल्कुल। Right, ma'am. So you have cleared about the parents aspects कि what type of a facilities you are giving. That's हाँ। great. CCTV चीज है कि हाँ पेरेंट्स हर टाइम देख सकते हैं कि what my child is doing or something. So that's amazing, ma'am. So ma'am, like we are talking about the parents, so my next question is related to that. So do you think parents are aware of that, how much the mental health is important for the preschool children or for the early years, how the mental health is very important for the kids? एज पर माई एक्सपीरियंस, यस, जो मेन चीज मैंने देखी है, दैट इज एक्सेप्टेंस। लाइक इफ दे आर सीइंग ऑल्सो, दे वुडंट एक्सेप्ट, उनको लगता है विद टाइम इट विल गो। लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि आप जितना अकेडमिकली फोकस कर रहे हैं बच्चों पे, उतना ही इमोशनल सेंस और इमोशनल कनेक्ट पे भी बच्चे का ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो उसको पेरेंट्स जनरली अवॉइड कर जाते हैं। उनको लगता है कि जब बच्चा जा रहा है, बाकी सारे बच्चों के साथ रह रहा है, तो ये चीजें भी ग्रेजुअली सीख ही जाएगा। बट आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। सबसे पहले पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, वो आके एक्सप्रेस करेंगे, अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो हम काफ़ी हैं फिर उनको गाइड करने के लिए। और वो गाइडेंस के थ्रू उस बच्चे में बहुत चेंज आते हैं। तो वो अकेडमिकली, जब इमोशनली बच्चा स्ट्रॉन्ग फील करेगा, तो उसका आउटकम भी बहुत अच्छा आता है। How you collaborate with parents to, when you notice a child is struggling with emotionally, or a हाँ। behavioral tantrums are there, or socially the child is struggling to get involved with the other children, so how you collaborate on this part with the parents? Yeah, firstly, if any admission comes, so obviously for 2-3 days we observe the symptom of the child. So teachers observe the things, and we prefer one-on-one interaction. So we call the parent, discuss the observation which we had, and take out a solution, like how can we go further with that, and what are the aspects we need to focus on. So we focus gradually on those things, and it works. Yeah. Obviously, eventually result is good, but it takes patience and time. Right. Teachers also need special trainings to identify early signs of uh, late development or any kind of a developmental concern or emotional distress with the children or the kids. Yes, definitely. The training is very much important, because they are the first one who connects with the child, who observe the signs in child, and if they know how to handle them, how to interact with them, how to guide the parent, they would better guide them, and results can be different. Okay, and I would say better. So definitely training must be there, and I would definitely encourage that. Like, what are the some common parenting difficulties you see?
while the parents are so much working these days, working family cultures, both parents are working, they can't give much time to the child. That's why they are, putting the child on the daycare or a playway or something. So what are the common parenting difficulties the parents are facing these A days? major problem which I have observed is time management. Like Yeah. managing work with parenting is very difficult for them. In my suggestion, they need to channelize it. They need to manage all the things. Like they can manage the time, like what time they have to spend quality time. There should be some bedtime routine. They can spend some quality time like meal time, maybe it's weekends, dinner, lunch, and listen to your child, like as much as you can. Whatever they are saying, if you have time, let them express, hear them what they want to express, and connect them emotionally. Then only you'll be able to make a consistency regarding the routine. So, ma'am, as you are talking about the emotional support, right? So, how parents can balance discipline and the emotional support in early childhood with the kids? ये डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट होना और पनिशमेंट देना नहीं होता। सबसे पहले ये हमें क्लियर करना होगा कि डिसिप्लिन का मतलब है किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। पर आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा रूड नहीं हो सकते, क्योंकि उनको एक होमली सेफ एनवायरनमेंट आपको घर में भी देना होगा कि बातों को एक्सप्रेस करने का तरीका, उसको एक्सेप्ट करिए, वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। समटाइम्स पेरेंट अवॉइड दैट, बेटा प्लीज गिव मी 5 मिनट, आई एम डूइंग दिस, 10 मिनट्स, आई एम डूइंग दिस। सो आई अंडरस्टैंड यू आर बिजी, बट be attentive what he was saying. You can later on call the child and say, yes, what was you saying, so ये चीजें हैं जो आप अगर उसको एक्सप्रेस करने देंगे तो वो कनेक्ट फील करेगा। दूसरा, आप एक रूटीन बना सकते हैं जिसमें आउटडोर प्ले रख सकते हैं। स्क्रीन टाइम तो मैं जनरली सजेस्ट करूंगी पेरेंट को कि ना ही करें, और जो पेरेंट नहीं मानते हैं उनको आप एक सुपरविजन के साथ कुछ लिमिटेड स्क्रीन टाइम दें। लाइक यू शुड नो व्हाट दे आर वाचिंग, ठीक है, Right. उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। और उसके अलावा उनके साथ आप बेड टाइम स्टोरीज क्रिएट करिए, शाम को एक रूटीन बना लीजिए कि डिनर साथ में ही करेंगे, तो उसमें इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए। उनका रूटीन पूछिए कि वो स्कूल में गए थे तो उन्होंने क्या किया था, आज उनका दिन कैसा रहा, आज टीचर ने क्या बोला। इस तरीके से आप उनसे जब कनेक्ट करेंगे तो उनको ये फील होगा कि पेरेंट्स के लिए हम वैल्यू करते हैं और वो हमें सुन रहे हैं। एंड नेक्स्ट डे वो बहुत ज्यादा और ज्यादा एक्साइटेड होके वो आएंगे कि मेरे से पेरेंट्स पूछेंगे, एंड आई हैव टू से ऑल दीज थिंग्स, आई हैव टू सिट विद देम, आई हैव टू हैव डिनर विद देम, एंड देन बेड टाइम स्टोरीज आर देयर, पेरेंट्स विल tell me the stories. So these all things will make the obviously the progress in the child. Right, right. I think you have already given the advices as well कि हम कैसे एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे की पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए क्रिएट कर सकते हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी गिवन द एडवाइजेज एज वेल कि यस, स्क्रीन टाइम आई थिंक इज अ बिगेस्ट इशू दीज डेज। चाहे Yeah. वो बच्चा 3 साल का है, 1.5 साल का है, चाहे 4 साल का है, स्क्रीन टाइम इज ऑलवेज देयर। एंड समटाइम्स पेरेंट्स आर ऑल्सो प्रमोटिंग दैट कि ठीक है, आराम से बैठा हुआ है, हमें तंग नहीं कर रहा है, तो लेट हिम सी द टीवी और अ फोन। Right. So those advices are very important to just involve the outdoor activities, and the bedtime stories are there. Spend more time with the child. Yeah. The child also, feel bounded towards you, or there is a strong bond between the parents and the child. Right. Okay. So my next question is that, like, there are lots of misconceptions about the children's mental health. Right. Hmm. So what are the major misconceptions you want to clear about the children's mental health? पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं होती, दे Hmm. डोंट गेट स्ट्रेस्ड। Right. ये एक मिथ है, दे डू गेट स्ट्रेस। और Yeah. दूसरा, उनको ये लगता है कि पनिशमेंट, अगर कोई चीज उन्होंने गलत की है तो पनिशमेंट दे दो और उससे चीजें सॉल्व हो जाएंगी। दे ये दोनों जो मिसकंसेप्शन है वो सबसे ज्यादा गलत है। और पेरेंट को, जो मैंने बार बार एक चीज रिपीट करी है, कि उनके साथ इमोशनल कनेक्ट करके उनको इतना एक्सप्रेसिव बनाना होगा कि वो आपकी बात
कंसिस्टेंसी आप जब फॉलो करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे। तो यही 2 चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। How can a school, and there are so many psychology institution like us as well, the ABCD, right? How we can collaborate with schools and we can raise the awareness for the mental health of the kids. Everyone having to have that podcast. So Mm. I was already were looking such kind of institution and the therapist, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने स्कूल में काफ़ी पेरेंट्स को छोटी छोटी चीज़ों पे, नॉट ओवरऑल बट छोटी छोटी चीज़ों पे सफ़र करते देखा है, जो कि इसी चीज़ का पार्ट है, Right. इमोशनल कनेक्ट और माइंडफुलनेस, या फिर बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे कराना है, या Mm. उसकी छोटी छोटी चीज़ों को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करा के एक्सप्लोर कर सके। कुछ Right. कुछ में स्पीच डिले का इशू भी आया। हाँ. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज होते हैं, वो सिर्फ चीज़ें फेंकते हैं, बच्चों को हिट एंड पुश करते हैं। तो विद टाइम हम देखते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करने का की कोशिश करते हैं। टीचर जितना उनको जानने की कोशिश कर पाती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने सो क्यों हिट किया, या व्हाई आर यू सो अग्रेसिव, तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। एंड उसी में अगर हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप इसकी जगह ये भी कर सकते थे, next time say, will you make promise you won't Mm. do that, you will be a good boy or good girl, they would pretend like that and they would act following, start following, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो बच्चे करते हैं। तो इसके ऑब्जर्वेशन पे मैंने ये डिसाइड किया था कि कुछ चीजें जो हम एक्स्ट्रा नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए मुझे कोई इंस्टीट्यूट या कोई थेरेपिस्ट या कोई भी ऐसा जो इन सब एस्पेक्ट्स पे काम कर पाए और ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो पाए, अ पार्ट ऑफ एकेडमिक, वो मुझे एक सेशन रखना है। तो उसके लिए चाहे मुझे वर्कशॉप करनी पड़े, चाहे मुझे पेरेंट्स काउंसलिंग करानी पड़े, टीचर्स ट्रेनिंग इज देयर, एंड मेनी थिंग्स जो भी हम लोग मिलके कोलैबोरेट करके कर पाए, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। Right, ma'am. Right. So, ma'am, do you think mental health education should be integrated into schools curriculums from the beginning? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे Mm. हम नॉर्मल एकेडमिक कराते हैं, जब बच्चा स्कूल में स्टार्ट करता है तो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, एंड इसी तरीके से हमें इमोशंस को भी उनको कनेक्ट कराना शुरू करना होगा, ताकि सपोजिटली हमारे स्कूल में हम बच्चे जब आते हैं तो उनको इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं Mm. बाय टेलिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी, Mm. creating a scene. Teachers would act like that story, any story. They would be that character and they would create a scene just like the theater, and they will interact. उसमें सारे इमोशंस होते हैं, चाहे वो हैप्पी हो, सैड हो, एंगर हो, वो सारे इमोशंस को वो कनेक्ट करना, फील करना शुरू करता है, और धीरे 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 उनको आइडेंटिफाई करता है और एक्सप्रेस करना शुरू करता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम अगर वर्कशॉप्स के थ्रू या किसी भी उसके थ्रू हम कनेक्ट करा सकते हैं तो। What initiatives would you like to see in the future to support young children, emotional growth, their overall mental growth as well? मोर पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन, जितना टीचर्स ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करा सकें, किसी भी तरीके की वर्कशॉप जो पेरेंट की जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, अ पार्ट ऑफ जो हमारा प्री स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा अगर हम प्रोवाइड करा सकें तो मैं, मतलब आई एम रेडी फॉर इट। मैं Right. भी चाहती हूँ इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स ओवरऑल चाइल्ड का अपना ग्रोथ देखें और वो इवेंचुअली सेटिस्फाई रहें, खुश रहें, और जो कि एक बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Right. So, what message would you like to give to parents and teachers about nurturing mental health in kids? आई वुड से डोंट रन बिहाइंड परफेक्शन, जस्ट जो जनरली अभी पेरेंट यही फॉलो कर रहे हैं कि वाई माई द कंपैरिजन इज देयर, परफेक्ट होना ही चाहिए, अगर आप अपने बच्चे को हैप्पी और कॉन्फिडेंट बनाएंगे तो आपको इवेंचुअली उसमें ऑटोमेटिकली ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी।
Right. इवेंचुअली academically बच्चा आपका strong हो Develop जाएगा. होएगा. Yeah. Exactly. Right. So, ma'am, my last question is like, what does mental health awareness means to you in context of early childhood education? I would say to all the parents that give equal importance to mental health also, if required. Mostly parents are running behind academically, like they want their child to, perform academically well. But I would say please focus on mental health because it is very much important for a child. And gradually and together also, तभी आपका बच्चे का ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकता है. एंड Right. डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलेंगे. तो यही मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स. So thank you so much, Sonali ma'am, for sharing your valuable insight and experiences with us today. Your thoughts on early childhood education and the role of play school in shaping young minds have been truly enlightening. So for थैंक our listeners, I hope conversation has given you the deeper understanding of how important the early years are, not just for the academic learning, but for the emotional growth and the social skills and the overall development of the child. Right? We really appreciate the wonderful work you are doing, ma'am, in your daycare and the preschool. And we wish to continue a success in nurturing a next generation. To our audience, thank you so much for यू. turning to the ABCD podcast.